ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਾਮਿਕਾ ਤਿਮਾਨ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 2026 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਿੰਗ ਆਫ ਫਾਇਰ ਨਾਮਕ ਇਸ ਆਕਾਸ਼ੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਵਰਗਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3:26 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ 7:57 ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਮਕੇਗੀ ਤੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਹਰ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿੰਗ ਆਫ ਫਾਇਰ ਵਰਗਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅੱਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਅੰਸ਼ਿਕ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖੇਗਾ। ਸਿਹਤ, ਧਰਮ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਾਲਗੁਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਗ੍ਰਹਿ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਅਸਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸੈਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੈਵੀ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਜੀ ਸੈਵੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ तक इसकी जानकारी ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। बिल्कुल। सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और क्योंकि ये ग्रहण कुंभ राशि में पड़ने वाला है तो जाहिर सी बात है कि कुंभ राशि के जातकों को थोड़ा सा सतर्क इस समय के दौरान जरूर रहना चाहिए। यहाँ पर कुछ चीजें मैं बताना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज ये है कि कुंभ राशि जो मानी गई है वो काल पुरुष की कुंडली के एकादश भाव यानी कि धन लाभ से डायरेक्ट संबंध जो है इस राशि का माना जाता है। अब ही सूर्य ग्रहण जो है वो भारत में विजिबल नहीं है, यानी कि यहाँ पे दिखने नहीं वाला है, दृश्य नहीं रहने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा क्योंकि दुनिया भर में सूर्य तो एक ही है। तो एक ही वो ग्रह माना गया है जो आपके जीवन में आपकी आत्मा का कारक है, आपके जीवन में ऊर्जा का कारक माना जाता है। तो जब ये ग्रह ग्रहण की स्थिति में आ जाता है तो थोड़ा सा इसका जो दुष्प्रभाव है वो पड़ता है। कुंभ राशि के साथ साथ सिंह राशि पर इसका जो प्रभाव है वो रहने वाला है। और कर्क राशि की अगर हम बात करें तो उनकी राशि से ये स्पेसिफिकली जो ग्रह पड़ रहा है वो अष्टम भाव में पड़ रहा है। तो कर्क राशि वालों को इस समय अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना चाहिए। कोई भी जल्दबाजी में निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए और विशेष करके धन संबंधित कोई भी निर्णय इस समय के दौरान बहुत जल्दी आप लोगों को नहीं लेना है। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, कहीं पैसा लगाने की सोच रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य ग्रहण ये दोनों ही ग्रहण जो है, आज 17 तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, आज अमावस्या की तिथि है, आज भौमवती अमावस्या का दिन भी है क्योंकि आज मंगलवार का दिन है। और साथ के साथ 3 मार्च को चंद्रमा यानी कि चंद्र ग्रहण जो है वो पड़ेगा पूर्णिमा तिथि पे। और कहा जाता है कि एक ही पखवाड़े में यानी कि 15 दिन के अंतर्गत में जब 2 ग्रहण एक साथ पड़ते हैं तो इसका जो प्रभाव होता है वो देश भर पे, दुनिया भर पे आपको देखने को मिलेगा। तो सिर्फ क्योंकि ग्रहण इंडिया में, भारत में दृश्य नहीं है, विजिबल नहीं है, इस
ये नहीं है कि इसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। हाँ, सूतक काल मान्य नहीं होगा, यानी कि जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो 9 घंटे पहले, और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले से ही सूतक काल मान्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये ग्रहण विजिबल नहीं है, इसी वजह से आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि इसका सूतक काल यहाँ मान्य नहीं है। लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो लोग थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से बार बार प्रभावित रहते हैं, उन हम्म। लोगों को थोड़ा सा इस समय के दौरान परहेज करना चाहिए। क्योंकि 3:26 से 7:57 तक ये जो ग्रहण है वो रहने वाला है। तो जी। इस बीच में जो गर्भवती महिलाएं हैं, अगर वो थोड़ा परहेज करें और घर के बाहर ना निकले, तो ये सुरक्षित तरीके क्या हो सकते हैं सैवी जी इस दौरान, क्योंकि जैसे कि आपने बताया गर्भवती महिलाओं के लिए आपने विशेष तौर पर इसमें जानकारी दी है, क्या सुरक्षित तरीके हो सकते हैं इसमें? जी, देखिए, सबसे पहले कहा जाता है कि अगर कोई भी खाना आप ग्रहण कर रहे हैं, तो हम्म। उसमें अगर तुलसी दल डाल देते हैं, तुलसी का एक पत्ता डाल के फिर उसका सेवन करते हैं, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि सूर्य जो है वो आपकी ऊर्जा का कारक है, आपकी एनर्जी का कारक है। तो आयु आपकी चाहे जो मर्जी भी क्यों ना हो, उम्र जी। आपकी जो मर्जी भी क्यों ना हो, सब पर इसका जो प्रभाव है वो पड़ता है। हम्म। दूसरी चीज ये है कि सूर्य वो ग्रह माना गया है जो उच्च सत्ता के कारक ग्रह माने जाते हैं। यानी कि अब सूर्य ग्रहण के बाद आप देखने वाले हैं कि देश विदेश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके जो मुखिया हैं, हम्म। उनके स्वभाव में, उनके प्रभाव में, उनके अपनी बातें करने के तरीके में आप एक बहुत डिक्लाइन, एक नेगेटिव प्रभाव जो है वो देखने को आपको मिलने वाला है। तो देश भर में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दो ग्रहण जब इतने कम समय के अंतर्गत आते हैं, तो उससे ये परेशानियां जो है वो एस्केलेट होती हैं। 45 दिन का ये जो समय है, विशेष करके जिन राशियों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, उनके उनके लिए तो कॉशियस रहने के लिए है ही। यानी कि सिंह राशि, कुंभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि के जो जातक हैं, इन्हें थोड़ा सा संभल के तो चलना ही चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जो बाकी अन्य राशियां हैं, उन्हें भी अपने कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के समय थोड़ा सा इस समय के दौरान परहेज करना चाहिए या कॉन्शियस रहना चाहिए। आज के दिन विशेष करके 3:26 से, क्योंकि ग्रहण जो है वो शुरू हुआ है, तो ऐसे में आज के दिन आपको विशेष करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, हम्म। सुन भी सकते हैं तो कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं। सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप अगर आप मानसिक जाप करते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है। क्योंकि आज भौमवती अमावस्या का दिन है, तो जी। पितरों के नाम से अगर आप कुछ दान करना चाहते हैं, तो जैसे ही ग्रहण समाप्त होगा 7:57 के बाद, यानी कि लगभग 8 बजे के बाद, पितरों के नाम से अगर आप कुछ दान करना चाहते हैं, या फिर गेहूं, तांबा, इस तरीके की चीजों का अगर आप दान करते हैं, लाल फलों का आप दान करते हैं, तो आपके जीवन में रोग, परेशानियां या जो भी कष्ट चल रहे हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलती है। ठीक है सैवी जी, हमारे साथ एक और एस्ट्रोलॉजर हैं और पूजा भाटिया हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। पूजा जी, स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। जी धन्यवाद। जी पूजा जी, तो जैसे कि सैवी जी ने बताया कि किस तरह 5 राशियों पर उन्होंने बताया कि यह सूर्य ग्रहण जो है वो असर करने वाला है। अब जी उपायों की बात आती है, क्योंकि सबसे पहले लोग ये सोचते हैं असर क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन उपाय की क्या किए जाएं, कौन से मंत्र जाप किए जाएं, कौन से भगवान को पूजा जाए, इसके बारे में कुछ जानकारी। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि ग्रहण से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जी। जब भी ग्रहण लगता है, ये एक नॉर्मल एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना है जो साल में 4 बार ग्रहण लगते ही हैं, 2 जी। सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। और 15 दिन के अंतराल में पहले सूर्य ग्रहण लगता है और फिर चंद्र ग्रहण लगता है। तो सबसे पहली बात, नॉर्मल खगोलीय घटना है, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरी बात है, इंडिया में ये ग्रहण विजिबल नहीं है, तो मेजर इम्पैक्ट इंडिया में आपको नहीं दिखेगा। हाँ, जनरल इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि हमारा सूर्य और चंद्रमा हमारी 2 ल्यूमिनरीज माने जाते हैं, और जब ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा ग्रसित होते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक इनविजिबल इम्पैक्ट सब पर रहता है। जी। और जहां तक जो लोग जिनकी ग्रहण योग की पत्रिका है, या फिर जिनकी कुंडली में राहु या केतु की दशाएं चल रही हैं, उनको मेजर एक तरह से इम्पैक्ट इसका फील हो सकता है। जिनकी कुंडली में राहु जो है अच्छी और शुभ स्थिति में है, उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय में राहु की ऊर्जा जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, तो राहु उनको अच्छा प्रभाव देगा। और ये जो समय है मैनिफेस्टेशंस का होता है। देखिए, ग्रहण का समय ऐसा होता है कि जब आप इस समय में साधना करते हैं या मंत्रोच्चारण करते हैं, तो वो साधना का फल, मंत्रोच्चारण का फल आपको 1000 गुना मिलता है।
तो जी। ओवरऑल इस समय पे मंत्रों की यदि हम बात करें तो देखिए सूर्य देवता ग्रसित है, सूर्य के मंत्रों का आप जाप करें, ओम गृणी सूर्याय नमः या जी। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें, या आप जिस भी भगवान को मानते हैं आप उन भगवान के मंत्रों का उच्चारण कीजिए। अगर आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो आप हम्म। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। अगर आप गर्भवती हैं तो आप घर में ही रहें, घर के बाहर ना निकले और मंत्रों का उच्चारण करते रहें, पॉजिटिव एनर्जी रखें, सोए ना इस समय गर्भवती महिलाएं जितनी भी हैं। और हो सके तो ग्रहण देखिए अब तो शुरू हो गया है, अगर आप टॉलरेट कर सकते हैं तो कुछ समय तक आप खान पीन को अवॉइड कीजिए। अगर हम्म। आप गर्भवती हैं, वृद्धावस्था में हैं या आप बीमार हैं तो आप खाना खा सकते हैं, लेकिन उसमें आप तुलसी दल डालकर खाइए। हम्म। इसके अलावा देखिए ये समय जो होता है ना अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करने का होता है, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा जो है वो बदल रही है। तो आप अपने गोल्स को विजुलाइज कीजिए, मौन होके साधना में लीन होइए और अपने जो भी गोल्स है उनको विजुलाइज कीजिए। और आप देखिए इस समय में विजुलाइजेशन जो आप करेंगे उसका बहुत फास्टर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल ये ग्रहण देखिए सिंह राशि और कुंभ राशि में मेन इसका इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी जो है सूर्य देवता खुद ही ग्रहण में ग्रसित है, और कुंभ राशि और सदभिषा नक्षत्र में ये ग्रहण लग रहा है। और जी। साथ में अगर हम बोले तो कर्क राशि पे भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा भी यहाँ पे है और कुंभ राशि में एक तरह से पंचग्रही योग बन रहा है। अब जी। आप देखिए यहाँ पे पंचग्रही योग में हमारे साथ बुध और शुक्र भी है, राहु के साथ और चंद्रमा के साथ और सूर्य के साथ। तो आप देखिएगा कि बुध से रिलेटेड जितने भी एरियाज हैं जैसे कम्युनिकेशन, इसमें आप डिस्ट्रप्शन देखेंगे। राहु हमारा टेक्नोलॉजी का कारक है, तो आप देखिएगा टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन आपको देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं एआई से रिलेटेड इश्यूज होंगे। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि नेक्स्ट 30 to 60 डेज में हैकिंग हो सकती है, कोई मेजर हैकिंग हो सकती है, बैंकिंग सिस्टम में डिस्ट्रप्शंस हो सकते हैं। और सूर्य जो होता है हमारा सत्ता का कार्य भी होता है, तो आप कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डिस्टरबेंस जरूर देखेंगे। जैसे कि सावी जी ने भी बताया कि आप जो है नेताओं का, जो वर्ल्ड के हम्म। मेजर लीडर्स हैं उनके स्वभाव में आप एक अजीब सी ईगो, उस ईगो की वजह से आप वो जो लोग होंगे एक गलत डिसीजन ले सकते हैं या कुछ ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो वर्ल्ड या ग्लोबल लेवल के लिए पॉजिटिव नहीं रहेगा। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उस पर भी काफी असर इसका हो सकता है। सैवी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हालांकि हमने राशियों की बात की है जिस पर इसका असर होने वाला है, लेकिन किस्मत किसकी बदलेगी इस सूर्य ग्रहण के दौरान? क्योंकि सवाल ये होते हैं कि हमारी राशि में क्या असर होने वाला है। सब नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन हमारा जो मोटिव है वो ये है कि पॉजिटिव लोगों को किया जाए, सिर्फ वो नकारात्मक नहीं सोचे। तो कौन सी ऐसी राशियां हैं कि हाँ जिनकी किस्मत बदल सकती है इस दौरान? जी देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। इसमें एक चीज मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहती हूँ कि जब हम आपको ये बताते हैं कि आपको सावधानी रखनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि बुरा होने वाला है, हम्म। लेकिन कॉन्शियस आपको खुद रहना चाहिए। प्रिकॉशंस इज द बेस्ट मेडिसिन कहा जाता है ना। तो अब क्योंकि ये वो ग्रह माना गया है जो आपकी वाइटैलिटी, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी का कारक है। दूसरी चीज ये है कि चंद्रमा जो है वो आपकी मानसिक सोच का कारक है। तो सोचिए, ऐसे दो ग्रह जो आपके लिए आपकी ऊर्जा और आपकी मानसिक सोच को गवर्न करते हैं, जब वो पीड़ित अवस्था में आते हैं तो किसका भला हुआ है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि इस समय के दौरान अगर आप थोड़ा सा मानसिक जाप करते हैं, जब हम कहते हैं कि ग्रहण की स्थिति आती है और उसमें आपको खाना नहीं कंज्यूम करना चाहिए, इसके पीछे भी एक लॉजिकल रीजन है। जब हम किसी छोटे बच्चे को कोई चीज समझाते हैं कि आप ये चीज मत करिएगा, तो उसका मन करता है कि ऐसा, उसमें जिज्ञासा जागती है कि ऐसा क्यों मुझे मना करें, कि मुझे क्यों नहीं करना है। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने बहुत सटीक तरीके से शास्त्र में इसका वर्णन किया कि ग्रहण की स्थिति जो होती है उसमें आपको खाना नहीं खाना चाहिए। और इसका उन्होंने रीजन दिया कि ये ग्रह जो आपके जीवन में ऊर्जा का कारक का काम करते हैं, जब वो पीड़ित होते हैं और उस स्थिति में अगर आप कुछ भोजन ग्रहण करते हैं तो उसका प्रभाव आपकी खुद की पूरी मानसिक और शारीरिक सोच पर और एनर्जी पर इम्पैक्ट डालता है, जो आपके लिए पॉजिटिव नहीं होता है। इसी तो नियम बताए जाते हैं या कुछ रूल्स आपको बताए जाते हैं। और खास करके आज अमावस्या की तिथि है, आज भौमवती अमावस्या है जो पितरों को समर्पित होती है। तो आज के दिन कोई भी अगर आप फास्ट करते हैं, अगर आप सूर्य ग्रहण के दौरान अगर आप खाना नहीं खाते हैं, या फिर अगर आप सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ दान पुण्य के कर्म करते हैं, तो उससे ऑल ओवर आपके जो पुण्य है, आपके जो कर्म है वो बेहतर होते हैं, वो सुधरते हैं।
ये चीज ये है कि इस समय के दौरान आप देखिए भारत की कुंडली से दशम भाव जो माना गया है वहां पर ये ग्रहण की स्थिति आ रही है, और दशम भाव से एग्जैक्टली 180 डिग्री ऑपोजिट में जो भाव माना गया है वो सत्ता का भाव है। यानी कि ऑपोजिशन में उथल पुथल होगी और सत्ता को हानि पहुंचाने के जो प्रयास हैं वो इस समय के दौरान बखूबी किए जाएंगे। पहले ही मैंने कहा कि जब राहु के साथ सूर्य की युति होती है तो राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको भ्रमित करता है, बड़े बड़े सपने दिखाता है और वास्तविकता से दूर लेकर जाता है। इसीलिए जितनी भी एआई है, जो टेक्नोलॉजी, आप देखिए एआई का एक मैसिव रोल जो है वो फिक्शनल चीजें क्रिएट करने में भी किया जाता है, यानी कि आपको वो दिखाना जो हो सकता है बट वास्तविकता में अभी है नहीं। और राहु ग्रह यही काम करता है। तो जब ऐसे ग्रह की एनर्जी हाइप पे आ जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो लोगों को भ्रम की ओर ज्यादा आकर्षित करती है। इसीलिए इस समय के दौरान अगर आप कोई भी शुभ कार्यों में लगते हैं, या अगर आप मानसिक जाप करते हैं, या अगर आप इस समय के दौरान थोड़ा सा परहेज करते हैं घर से बाहर निकलने का, तो ये अच्छा माना गया है, खास करके उन लोगों के लिए जिनके लिए राहु, चंद्रमा और सूर्य की स्थिति उनकी कुंडली में अच्छी नहीं है, थोड़ी सी कमजोर है, या फिर जो स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से ग्रस्त हैं। वरना क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ये जो ग्रहण है वो दक्षिणी अफ्रीका के क्षेत्रों में दिखने वाला है। ये ग्रहण जो है वो आपको मॉरिशस, अंटार्कटिका, इन क्षेत्रों में दिखने वाला है। जी। भारत में ये ग्रहण जो है वो दृश्य नहीं है, इसलिए आप अपनी दिनचर्या को नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, लेकिन कुछ परहेज जो है वो गर्भवती महिलाओं के लिए सुझाव दिए जाते हैं। जी जी, जैसे कि सैवी जी आपने बताया कि लोग जैसा मैनिफेस्ट करेंगे वैसा ही होगा, तो उनको पॉजिटिव सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं पूजा जी के पास आना चाहूँगी। पूजा जी, इस सूर्य ग्रहण का जो असर है, जिन राशियों की आपकी ओर से जानकारी दी गई है, कब तक रहने वाला है? क्या जानकारी के मुताबिक जो है कि 1 माह तक इसका असर रहने वाला है, या फिर इससे ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है? एक और मेरा सवाल मैं इसमें जोड़ना चाहूँगी, जो कि इस दौरान लोगों के साथ कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं सूर्य ग्रहण के दौरान, तो वो लोग ये सोचते हैं कि सूर्य ग्रहण है इसलिए हमारे ऊपर भी ग्रहण आ चुका है। ये अक्सर ही हम सुनते आए हैं, तो इसको लेकर आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जहां तक राशियों की बात है, राशियों पे किसी भी ग्रहण का असर या फिर ग्लोबल इंपैक्ट जो ग्रहण का रहता है वो 30 to 45 डेज तक रहता है। सो ओवरऑल अभी से ही आप देखिएगा कि जिन लोगों की राशि सूर्य है या चंद्र राशि के, कर्क राशि के लोग हैं, उनको एक अजीब से एंग्जाइटी, एक अजीब से कंफ्यूजन की स्थिति महसूस होने लग गई होगी, बहुत ज्यादा इरिटेट सा फील करने शुरू हो गए होंगे। और आपने अभी इससे पहले एक सवाल किया था कि कौन कौन सी राशियां हैं जिनके भाग्य भी खुल सकते हैं इस ग्रहण से, तो उसमें हमारी शामिल है मेष राशि, मिथुन राशि और तुला राशि। इनको अच्छी नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इनके अटके हुए काम जो है वो अब पूरे होने शुरू हो जाएंगे। वहीं जैसे कि मैंने बताया कि कर्क राशि, सिंह राशि और कुंभ राशि वालों को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ग्रहण योग में ये 3 मेन प्लैनेट्स आ रहे हैं। अब सूर्य जो है कुंभ राशि में ही आप देखिए एंटर कर रहे हैं, और यहाँ पिता पुत्र का जो एक तरह से संबंध है वो एस्टैब्लिश हो रहा है। तो कहीं ना कहीं घर में पिता पुत्र के रिलेशंस में भी आप थोड़ा सा मनमुटाव देखेंगे, तो वो चीज आपको नहीं करनी है। सूर्य ग्रहण के दौरान आप अपने पिता का जितना सम्मान करते हैं, सिर्फ सूर्य ग्रहण के दौरान ही नहीं, सारी जिंदगी आपको ये चीज करनी चाहिए। आप उनका आशीर्वाद लीजिए, अपने गोल्स मैनिफेस्ट कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिए, और साथ ही आप जो है देखिए अपना विजुअलाइजेशन कीजिए, क्योंकि साधना का विशेष महत्व है। यहाँ पे मैं बाकी राशियों की भी बात करूंगी कि जिस तरह से धनु और कुंभ राशि है, उनको हो सकता है थोड़ी सी मानसिक अशांति फील हो, और वो अपनी जो मानसिक अशांति को मेडिटेशन के द्वारा दूर कर सकते हैं। वहीं बाकी की बची हुई राशियां कन्या, मकर और मीन, इनको भी अच्छा फल मिलेगा, बस थोड़ी सी मेहनत इनको इस समय पे ज्यादा करनी पड़ सकती है। दूसरा सवाल जो आपने मुझे पूछा है कि जिन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है वो सोचते हैं कि हमें भी ग्रहण लग गया है, तो सबसे पहले ये समझिए कि सौर्य मंडल में सूर्यदेव ग्रसित हो रहे हैं। सौर्य मंडल से सूर्य की ऊर्जा जो है वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पा रही है, तो ऐसे में बहुत सारी नेगेटिव रेडिएशंस, यूवी रेज हमारे अर्थ के हेमिस्फीयर में एंटर करती है। इसका एक जनरल इंपैक्ट रहता है। एक्सीडेंट्स या फिर किसी भी तरह की नेगेटिव सिचुएशन से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। खास करके अगर आपकी कुंडली में
ग्रहण योग है, जैसे आपकी कुंडली में भी सूर्य और राहु कॉम्बिनेशन है, आपकी भी ग्रहण योग की पत्रिका है, या चंद्र राहु या चंद्र केतु कॉम्बिनेशन है, और आपकी कुंडली में ही राहु केतु या सूर्य की ऐसी कोई दशाएं चल रही है जो एक्सीडेंट दर्शा रही है, तब ये इम्पैक्ट बहुत पावरफुल हो जाता है। लेकिन जिन लोगों की कुंडलियों में दशाएं अच्छी हैं, राहु केतु की प्लेसमेंट अच्छी है, चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी है, उनको कोई भी मेजर इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहली बात, नेगेटिव सोच अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए। आप देखिए ये समय ऐसा है, जो भी आप सोचेंगे ना वो 1000 टाइम मैनिफेस्ट होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटर है कि आप पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए। किसी भी तरह की आप देखिए इस साइड टाइम पे आप जो मेन हमारे जो होता है ना डाइजेस्टिव सिस्टम इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जो सूर्य की जो रेज होती है ना वो आप देखिए जितने भी हमारे बैक्टीरियाज होती हैं उनको किल करती हैं, और सूर्य जो है ऊर्जा का स्रोत माना गया है। तो इसीलिए हम खाने पीने के लिए भी मना करते हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। और एक ये मेजर कॉस्मिक एनर्जी शिफ्ट हो रही है, तो इसमें आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, और ग्रहण होने के बाद आपको क्या करना है, पूरे घर को आपको गंगा जल से छिड़काव करना है, शुद्धिकरण करना है, खुद भी नहाना है, और जितना आप दान पुण्य करते हैं ग्रहण के बाद, क्योंकि आज अमावस्या तिथि भी है, पितरों के नाम का आप जितना दान पुण्य निकालेंगे उतना ही आपको उसका 1000 गुना फल सुना ये गया सिर्फ है। उन राशियों के लिए जिन पर इसका असर होगा, ये उन राशियों के लिए आप बता रहे हैं? ये सभी राशियों के सभी लिए राशियों के लिए, दान ठीक पुण्य है। सभी राशियों को करना चाहिए, ठीक क्योंकि है, सभी जी। राशियों पे इसका कुछ ना कुछ जनरल इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है। स्पेसिफिकली जो सिंह और कुंभ राशि है उनको तो करना ही करना है, सभी राशियों के लिए ये एक जनरल रेमेडी है जो सबको करनी ही चाहिए। जी सैवी जी से मैं आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, समय बहुत ही कम है, चर्चा बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन सैवी जी आखिरी सवाल में मेरा यही रहेगा कि आप दर्शकों को एक बार फिर से जाते जाते उपाय बता दीजिए और कुछ एक पॉजिटिव जो संदेश उन्हें दे दीजिए। जी देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात मेरी फेलो पैनलिस्ट ने भी कही, पूजा जी ने अभी, कि ये मैनिफेस्टेशन का समय है, ये साधना में का समय है, ये अपनी इच्छाओं की पूर्ति करवाने का समय है। देखिए ग्रहण जो है वो इच्छा पूर्ति के ही भाव, एकादश भाव में लग रहा है। तो इस समय के दौरान आप जितना पॉजिटिव सोचते हैं, आप जितना मानसिक जाप करते हैं, उतना ही बेहतर आपके लिए रहता है। नहीं जाप कर सकते हैं तो श्रवण कर लीजिए, सुन लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपसे उच्चारण में त्रुटि हो सकती है तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुनिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, सूर्य के मंत्रों का जितना आप जाप करते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः जो होता है, इस मंत्र का आप जाप कीजिए। साथ के साथ में गेहूं का दान जरूर कीजिएगा। जैसे ही जो ग्रहण की काल है वो समाप्त होता है, उसके बाद आपको गेहूं का दान करना चाहिए, तांबे का दान करना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए, लाल फलों का दान करना चाहिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अगर आप दान करें तो बहुत अच्छा है। रविवार के दिन अगर आप एक पौधा जो फल देने वाला वृक्ष होता है वो किसी खुले आंगन में अगर आप प्लांट करते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य नियमित रूप पीड़ित रहता है, जिन लोगों को परेशानी रहती है, जो उच्च पद की प्राप्ति करना चाहते हैं बट वहां तक पहुंच नहीं पाते, जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम्स में चाहते हैं कि वो आगे कर पाए अच्छा प्रोग्रेस, उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। उन्हें जरूर करना चाहिए कि खुले मैदान में एक फल देने वाला वृक्ष जो है वो अगर आप संडे के दिन, रविवार के दिन उगाते हैं, प्लांट करते हैं, तो ये बहुत अच्छा माना गया है। जी ठीक है, सैवी जी और पूजा जी आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ चर्चा की है, बहुत ही अच्छी चर्चा हुई, दर्शकों तक सारी जानकारी पहुंची है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सूरज ग्रहण ते किस्मत कनैक्शन ते हाल ही दे विच थोड़े नाल हर जानकारी साझी की गई है। फिलहाल दे लई मैनूं दिओ इजाजत, सत श्री अकाल।